just now shared about a vending machine which is there in sector 17. So you must go and visit there Yes, also. ma'am. Okay. Okay. So yes, welcome to the class, Gurleen and Karanveer Singh. Welcome to the class, both of you. So we are on the chapter Plant Kingdom, Kingdom Plante. Am I audible, Gurleen, Karanveer? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, nice. So, बच्चे, we are on third chapter. I'll revise all the chapters once again. Don't worry about the syllabus. बच्चे, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे join in करेंगे, तो don't worry. We will be revising all the chapters once again. So I am going to start with the third chapter, that is Plant Kingdom, or it is also called as Kingdom Plante. Easy है काफी, अगर आप समझ के करोगे तो बहुत easy लगेगा आपको. What were the features? In the last class I told you, they include all the multicellular. Eukaryotic and autotrophic. Yes, multicellular, eukaryotic and autotrophic. आपको पता है plants are green in color because they can produce their own food or they show photosynthesis. तो जितने भी multicellular eukaryotic organisms हैं, in fact plants, they are placed under this category, the kingdom Plantae. Now they are classified or they are grouped. Plants are grouped into, yes, 5 parts. Plants are grouped into 5 parts. सबसे पहले कौन सा पार्ट है? किंगडम, सॉरी, एल्गी. Algae. Some people say it as algae, but it is algae. Algae के अलावा है bryophytes. Algae, bryophytes, pteridophytes. P is silent. Pteridophytes. Gymnosperms. And lastly, angiosperms. इस चैप्टर में आपने इन सबको डिटेल में पढ़ना है. तो सिर्फ पहली लाइन, किंगडम प्लांटे, they include all the multicellular eukaryotic organisms and all the plants, they are grouped into different types. तो सबसे पहली टाइप थी एल्गी, फिर उसके बाद है ब्रायोफाइट, फिर है टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, and then lastly angiosperms. Now in the last class we have started with this algae. Yes, algae. Yes, ma'am. Yes, so I'm going to make you write down. Algae, this term was given by Linnaeus. Linnaeus. Karanveer, Gurleen, बच्चे आप लोगों ने ये टर्म्स, ये जो साइंटिस्ट है लीनियस, इसको याद रखना है. इसकी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है. इसने बहुत सारी चीजों को डिस्कवर किया था, तो बार बार इसका नाम आएगा तो आपको याद भी रहेगा. बट एल्गी का जो टर्म है, टर्म एल्गी मतलब नेम एल्गी वाज गिवन बाय लीनियस. स्टडी ऑफ एल्गी is known as Phycology. Study of algae. जब हम algae को पढ़ते हैं, तो I am a phycologist. I told you in the last class that I have done my PhD on algae only. So I am a scientist in phycology. Phycology is what? Study of algae. Father of phycology, कुछ चीजें हैं जो which are not given in your NCERT, but आपको पढ़नी है terms. Father of phycology. जब आप नीट के क्वेश्चंस करोगे तो आपके पास नोट्स बहुत अच्छे बने होंगे. फादर ऑफ साइकोलॉजी इज फ्रिश. FRITSCH. Frisch. Frisch has given names to 6 lakhs. मैंने आपको बोला था 600,000 लिखा हुआ है. 600K का मतलब है 600,000, which is equals to 6 lakh. तो इसने 6 लाख स्पीशीज को
नाम दिया in his book which is, बुक का नाम क्या था? स्ट्रक्चर एंड Structure रिप्रोडक्शन। and reproduction. यस, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि मैम हमें ये क्यों लर्न करने पड़ते हैं, साइंटिस्ट के नाम और ये बुक्स के नाम। अच्छा, क्योंकि दीज आर नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बट दीज आर इम्पोर्टेंट। क्योंकि देखो, अब जब आप एल्गी पढ़ रहे हो तो सबसे पहले दिमाग में आता है ये नाम किसने दिया, फिर बाद में आता है कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसने सबसे पहले काम किया इस पे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को बाय डिफॉल्ट पढ़नी पड़ेंगी। दिस विल मेक यू मोर इंटेलिजेंट फ्रॉम योर फ्रेंड्स और फ्रॉम योर क्लासमेट्स। रीजन बीइंग, जब हम बुक को पढ़ते हैं तो हमें नॉलेज बढ़ती है, लेकिन जब हम बुक से आगे, मतलब बियॉन्ड बुक, कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स जब जाते हैं, तो हमारे लिए कॉम्पिटिटिव लेवल बढ़ता है। तो हमें थोड़ा थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज एफर्ट्स। तो एक कहावत भी है, अगर आपने सुनी हो सबने तो इट्स गुड, नहीं तो अदरवाइज सुनो। कहा जाता है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। What is the difference between ordinary and extraordinary? It is just little extra. जो ये आपका एक्स्ट्रा पड़ा है ना आपका, ये आपको ऑर्डिनरी से क्या बना देगा? एक्स्ट्रा। तो the difference between ordinary and extraordinary is just bit of this extra. तो वो हमने करना है काम। जब आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, तो साथ साथ इतने ध्यान से लिखो, इतने ध्यान से सुनो कि दोबारा आप लोगों को रिपीट करने की जरूरत ना हो। बट आई विल कीप ऑन रिपीटिंग। तो आप लोगों की बायो की हेडेक तो एटलीस्ट मेरी। तो आप जो लिख रहे हो नोट्स इतने सुंदर बनाना कि खुद जब पढ़ो सेकेंड टाइम तो आपको अच्छा लगे पढ़ने में। तो एल्गी के बारे में आज हम इसके फीचर्स लिखेंगे। प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक साइड बाय साइड। तो अर्श, हमने बेटे लास्ट क्लास में आपने कर लिया था ऑलरेडी। किंगडम प्लांटे, it includes multicellular eukaryotic organisms and they are grouped into 5 classes: algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperms and angiosperms. This is called as pteridophyte. बहुत सारे बच्चे पटेरिडो बोलते हैं, p silent. It is pteridophytes. Phyte का मतलब क्या हो गया? प्लांट। तो ब्रायोफाइट प्लांट्स हो गए। ब्रायो अब हम पढ़ेंगे what are bryos. टेरिडो पढ़ेंगे, these are phyta means plant. और फिर हमने अभी एल्गी के बारे में शुरू किया है। तो ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अर्श, याद है बेटे? तो यस अर्श। यस मैम। यस बेटे, आपका अश बोलेंगे ना, अशप्रीत? यस, योर नेम इज अशप्रीत, राइट? यस मैम। यस यस, ओके ओके। तो इसमें अगर आपने देखा है तो एल्गी इज फाउंड इन फ्रेश वाटर। इसका फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड मरीन वाटर। लास्ट टाइम आप लोगों को मतलब बताया था इसका कि फ्रेश वाटर तो वो होता है जो रिवर वाटर होता है। आप हिमाचल में जाते हो, वहां पे आपने देखा बहुत सारे स्ट्रीम्स चल रहे होते हैं, बहुत सारे झरने होते हैं सड़कों पे। तो उसमें झरनों में अगर आपने पानी पीना है तो आप पी लेते हो, इट इज सो क्लीन। यस, अगर आपने ध्यान दिया ना, झरनों पे जो पानी होता है इतना साफ होता है, इतना क्लीन होता है कि आपने अगर पानी पीना है तो आप उसे सीधा पानी उसमें पीना शुरू कर दो। दैट इज कॉल्ड एज फ्रेश वाटर। मरीन वाटर वो होता है जो हमें बीचेस पे मिलता है। आप कल को गोवा जाओगे, केरला जाओगे घूमने, तो वहां सारा मरीन वाटर है, दैट कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। ज्यादा देर उस पानी में रहोगे, आपके हाथों पाँव में वो लाइंस पड़ जाएंगी। ब्रैकिश वाटर वो होता है जहाँ पे ये दोनों पानी मिलते हैं, सिल्ट फॉर्मेशन होती है। कहते हैं जब जहाँ पे फ्रेश वाटर और मरीन वाटर मिलता है वहां पे फॉर्म होता है एस्चुरी। तो दैट वाटर इज कॉल्ड एज ब्रैकिश वाटर। तो एल्गी एक ऐसी चीज है जो हर जगह मिलेगी। इनकी सेल वॉल, क्योंकि ये प्लांट की तरह है तो ऑब्वियसली दे हैव सेल वॉल। प्लांट्स की हमेशा सेल वॉल होती है। और प्लांट्स में किसकी सेल वॉल होती है? सेल्यूलोज। Cellulose. लेकिन इनमें सेल्यूलोज के अलावा और भी डेपोजिशंस होती हैं, लाइक पेक्टिन, दीज आर ऑल शुगर्स, गैलेक्टोज and mannose. These are the thickenings. Apart from cellulose, they have thickenings of galactose, mannose, pectin. And next, can I move to next page? Yes, Gulleen, Karan. So these thickenings are on cellulose only, like on the layer of cellulose only.
नहीं, दे आर मिक्स्ड विद सेल्यूलोज. ओके मैम. ठीक है, हाँ, अकेला सेल्यूलोज नहीं है, दे आर मिक्स्ड विद सेल्यूलोज. तो सेल्यूलोज के साथ और कंपोनेंट्स हैं which are added on, pectin, galactose. So this makes their layer very hard, the cell wall. Okay, can I move to next page if everybody is done? Okay. Yes. Okay, so next part is, इनकी लेयर के बाहर एक और लेयर होती है. their cell wall is surrounded by mucilaginous layer. लास्ट क्लास में आपको बताया था mucilaginous. mucilaginous layer makes it slimy. मैंने आपको बोला था बारिशें पड़ती हैं, अगर कहीं पे भी एल्गी लगी है, काई बोलते हैं, एक होती है फंजाई, उली जिसको बोलते हैं, एक होती है काई विच इज ग्रीन इन कलर. तो आपने देखा होगा बारिशें होती हैं आपके बैकयार्ड में, ग्रीन ग्रीन अपीयरेंस आ जाती है सड़कों पे. इवन हिली एरियाज में अगर कोई घूमने गया तो उसने देखा होगा कि तिलकन सी शुरू हो जाती है, बहुत सारा स्लिपरी एरिया हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस एल्गी. ये जनरली ये पॉट्स, फ्लावर पॉट्स के आसपास इसकी अपीयरेंस ज्यादा होती है. आपने देखा गमलों के आसपास ग्रीन ग्रीन अपीयरेंस होता है बारिश के बाद. Yes, ma'am. So it is because they have this mucilaginous layer on the cell wall and their body is thalloid. तो ये हमने मुझसे किसी ने क्वेश्चन भी पढ़ा था, बताया था, किसी ने पूछा था, they belong to thallophyta because their body is not differentiated into root, stem or leaves. Into root, ना कोई इसके अंदर रूट है, ना कोई स्टेम है, ना कोई लीफ है. क्योंकि क्वेश्चन आता है why they do not require root or stem or leaf. बहुत ध्यान से सुनना, रूट चाहिए होती है पानी एब्जॉर्ब करने के लिए. तो पानी में जब ये रहे ही पानी में रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया दे लिव इन वाटर, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर और ब्रैकिश वाटर. जब ये रहे ही पानी में रहे हैं तो देयर इज नो नीड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो रूट का काम खत्म. स्टेम चाहिए होती है ऊपर पानी लेके जाने के लिए. जब ये जमीन से चिपके हुए हैं तो इनको कंडक्शन की जरूरत नहीं, तो स्टेम भी खत्म. पूरी की पूरी बॉडी ग्रीन है तो खाना बनाने की जरूरत नहीं है, लीफ की फंक्शन खत्म. दैट इज व्हाई दे हैव थैलोइड, थैले जैसी. थैलोइड ऐसे नाम बताया, इट इज नॉट थैला, थैलोइड नाम दे दिया. इट नो डिफरेंशिएशन बिटवीन रूट, स्टेम और लीव्स. आई विल मेक द डायग्राम, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू. फिर इसके बाद न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन इनके अंदर कैसा है, दे शो यस ऑटोट्रॉफिक. और ऑटोट्रॉफिक में स्पेसिफिकली क्या हम बोलेंगे, Photoautotrophs. yes, photoautotrophs. Why photoautotrophs? Because they require sunlight. क्योंकि इनके पास है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट in which chlorophyll is present. So they can make their own food. बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें आप लोगों को आज बताई हैं. फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट पार्ट शुरू किया था इनका रिप्रोडक्शन. कोई भी अगर हम किंगडम प्लांटे में पढ़ेंगे, पहले उनकी बाहर के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, सेल वॉल, उनके बॉडी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, फिर उनको ऑब्वियसली प्लांट्स हैं तो दे ऑल शो फोटोसिंथेसिस, फिर हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन. ये हर एक में ऐसे स्टेप वाइज चलेंगे. तो रिप्रोडक्शन में अगर आप लोगों को याद हो तो हमने 3 मोड्स पढ़े थे, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल. वेजिटेटिव, ये गुरलीन, ये 3 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. अगर आपको याद हो आपने 10th में पढ़े हैं. वेजिटेटिव होता है बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय बाइनरी फिशन. एसेक्सुअल जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जैसे बर्डिंग और स्पोर फॉर्मेशन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस. तो ये तीनों तरह के हैं. इनके बारे में अगर आप पढ़ो तो वेजिटेटिव, बच्चे नोट डाउन कर रहे हो साथ साथ, Karanveer? Yes, ma'am. Okay, please note it down. And if you have any difficulty, just let me know right away, okay?
बाकियों को तो इजी लग रहा होगा. यस फनीशा, आदित्य. ओके, गुलीन डन. Yes, ma'am. ओके, तो नेक्स्ट इज वेजिटेटिव. तो वेजिटेटिव में दो तरह से आता है, बाइनरी फिशन. अब इसमें बाइनरी फिशन में ऑब्वियसली इट विल नॉट बी बैक्टीरिया, इट इंक्लूड्स ऑल यूनिसेल्युलर. Cellular organisms. Yes, unicellular organism नहीं, unicellular algae. जितनी भी unicellular algae है, they will reproduced by this method, which is binary fission. दूसरा आता है fragmentation. प्यारे बच्चों, ये याद रखना, it's a trick to remember कि अगर कोई please mute yourself. अगर हम सिंगल बात करेंगे, तो अगर हम सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो जनरली फिशन से डिवाइड होगा. जैसे ये टूट जाएगा, दो में डिवाइड हो जाएगा. लेकिन जब हम बात करते हैं किसी थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म, फिलामेंटस, तो उसकी फ्रेगमेंटेशन होगी, छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाएगा, पीसेस में, और हर पीस जो है वो नया ऑर्गेनिज्म है. तो सिंगल ऑर्गेनिज्म विल शो बाइनरी फिशन, whereas filamentous will form this fragmentation. तो filamentous आएगा इसके अंदर. This is filamentous. All filamentous algae. All. फिर हम पढ़ते हैं asexual. Asexual नाम से पता चल रहा है, ए कभी भी किसी वर्ड के साथ आ रहा है, that means absence. तो asexual reproduction means कि it is not reproducing sexually. So asexual reproduction by formation of spores. So I am writing down spores. Different types of spores. पहले आ गया zoospore. Asexual reproduction by different types of spores. Zoospore is a motile spore. Aplanospore, non-motile spore like hypnospore और एकाइनी. अब ये टर्म आप लोगों के लिए डिफिकल्ट है. ये दोनों टर्म्स आप लोगों के लिए न्यू हैं, बट आप ध्यान से सुनो. वेजिटेटिव तो बता दिया आपको, बाय बाइनरी फिशन और फ्रेगमेंटेशन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स. स्पोर्स इसके अंदर जो आ रहे हैं, दे मे बी मोटाइल. मोटाइल मतलब जो चलेंगे, और नॉन मोटाइल विच विल नॉट मूव. अगर चलने वाले मोटाइल स्पोर्स हैं तो उनको हम नाम देंगे जूस्पोर्स, और अगर वो बिना चलने वाले स्पोर्स हैं, दे आर कॉल्ड एज नॉन मोटाइल स्पोर्स. ओके, प्लीज राइट डाउन. Yes. I hope everybody is done with the writing part. Yes, No, ma'am. Okay, okay, okay. Welcome back, Naveen. Your mic was not working. Yes, ma'am. Due to some network issue. Okay. How's your health, Naveen? All well? Yes, ma'am. Okay. So up next is sexual reproduction. Sexual reproduction. Sexual is again with the help of spores. There are different types of spores. Isogamous. Sexually, they reproduce by isogamy, anisogamy, and oogamy. आज थोड़े से टफ वर्ड्स आप लिख रहे हो. ISO, isogamy, GAMY, anisogamy, ANISOGMY, and oogamy. Ma'am, what is the yes. second one? Second one is aniso. A का मतलब क्या था सुखमन? Ma'am, absence. Absence. तो
तो आइसोगेमी तो नाम से पता चला, आइसो का मतलब होता है सेम, तो गेमीट्स आर सेम, एंड आइसो मतलब व्हेन दे आर नॉट सिमिलर। oogamous, अभी आई विल मेक द डायग्राम्स, डोंट वरी, एक एक चीज का डायग्राम आपके पास होगा, सिर्फ आप लिखोगे, नोट्स बनाओ पहले बढ़िया से। तो अभी आपने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। जो स्पोर्स होते हैं जो इन केस ऑफ ए प्लानोस्पोर्स जो लिखा है, मैंने लिखा था एक मोटाइल है ज़ूस्पोर्स, एक लिखे हैं नॉन मोटाइल। तो जो नॉन मोटाइल स्पोर्स है हिप्नोस्पोर्स और एकाइनीज, दे आर मेथड ऑफ पेरिनेशन। मतलब जब ये गर्मियां होती हैं या बहुत सर्दियां, बर्फ पड़ी होती है, तो एल्गी आपको दिखती नहीं, बारिशें होती हैं फिर से वो वहां पे आ जाती है, वापस आ जाती है। वो ऐसे कैसे? तो क्योंकि दे हैव फॉर्म या दे हैव अंडरगॉन दिस, they have formed these spores which are the methods of perination during unfavorable condition। जब फेवरेबल कंडीशन नहीं था तो इस तरह से वो सरवाइव कर रहे थे। अब अगर इतना छोटा ऑर्गेनिज्म है, हम एक डायग्राम आपको बताते हैं मैं आपको। अगर हम बात करें यूनिसेल्यूलर एल्गी, यूनिसेल्यूलर एल्गी आपको ये एक मिलेगा जिसका नाम है क्लैमाइडोमोनस। क्लैमाइडोमोनस एक ग्रीन एल्गी है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट ये ऐसे है, इट इज अ कप शेप, ये सारा क्लोरोप्लास्ट है, इट हैज अ कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, ये सारा ग्रीन कलर है। आप अगर इसको व्यू करोगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो इट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर, बिल्कुल ऐसा आपको दिखेगा। एंड इट हैज 2 फ्लैजिला, 2 बाल हैं इसके पास फॉर लोकोमोशन, चलने के लिए। दिस इज योर यूनिसेल्यूलर एल्गी। अगर आपको पता चल गया हो कि ये 2 फ्लैजिला है इसके अंदर, तो ये ऑब्वियसली ये क्या है? मोटाइल, चलने के लिए। मोटाइल का मतलब होता है विच कैन मूव, as they have 2 flagella they can move from one place to another, so they are unicellular algae। ऐसे ही कुछ एल्गी है जो फिलामेंटस है, अभी मैंने बताया था आपको फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस एल्गी जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा। एल्गी तो देखने में मेक द डायग्राम वंस अगेन, एल्गी देखने में इसका कलर डार्क होगा, लेकिन उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होगा दैट विल बी स्पाइरल शेप्ड। इसको बोलते हैं स्पाइरोगायरा। ये मैंने आपको एग्जांपल दी। फिलामेंटस, फिलामेंटस का मतलब मैंने आपको बताया था धागे जैसा, थ्रेड लाइक। अगर आप लोगों में से रिसेंटली या फिर कोई 42 की लेक में गया है, रेज योर हैंड। 42 की लेक जो आर्टिफिशियल लेक अभी बनाई गई है, एनीवन ऑफ यू हैव रिसेंटली विजिटेड दिस 42 लेक? ओके, सुख नहीं, यस, एनीवन एल्स? ओके, ड्यूरिंग लॉकडाउन may not have gone there, okay Kiranpreet, you must visit there। अब अगर वहां आपने ध्यान दिया हो तो वहां का पानी जो है दैट इज नॉट वेरी गुड, क्योंकि वहां जब एक बार साल में एक बार छठ पूजा होती है, अगर किसी को पता हो, ये बिहार का एक फेस्टिवल है छठ पूजा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, तो उसमें क्या है कि फीमेल्स दे हैव टू गो इनसाइड वाटर एंड प्रे टू आई थिंक मून, मतलब अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट उसको डीप या वेस्ट तक पानी में डिप होना पड़ता है, इनफैक्ट एक डिप लेना पड़ता है। तो वो पानी में लोग फूल फेंकते हैं, जाते हैं वहां पे और बहुत सारी पूजा सामग्री फेंकते हैं, नारियल रख देते हैं। दैट वाटर इज गेटिंग पोल्यूटेड, इट्स नॉट गुड फॉर वाटर बिकॉज इट इज नॉट रनिंग वाटर, वो एक ही जगह खड़ा है, वो नीचे रह जाता है सारा घर। या इनफैक्ट बच्चे जा रहे हैं अभी स्विमिंग कर रहे हैं, अभी जाओगे ना इतनी गर्मी है तो आप देखोगे डॉग्स उसमें नहा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं उसमें जंप कर रहे हैं। अब डॉग्स हैं तो यूरिनेट कर देंगे, बच्चे जा रहे हैं नहाने जाएंगे तो सुसु आ जाएगा। तो ऐसे करते करते वो दैट पानी इज गेटिंग, दैट वाटर इज गेटिंग पोल्यूटेड विद सो मेनी थिंग्स। अब वो पानी जो है उसके अंदर ये ग्रो करेगी, जो आपके सामने लिखी है एल्गी, एंड जनरली यू विल फाइंड इन दिस वाटर पर्टिकुलरली, आई हैव सीन दैट स्पाइरोगायरा आपको बहुत मिलेगी। और माय डियर फ्रेंड्स, यू विल बी अमेज्ड टू हियर कि वहां इतने बड़े धागे हो जाते हैं। वैसे तो दिस इज माइक्रोस्कोपिक, बट वो इतना ज्यादा फैल जाते हैं कि वो धागा बन जाता है, जैसे घास का एक धागा होता है, एंड इट इज क्रिएटिंग न्यूसेंस इन दैट वाटर। धागे इतने बड़े हैं कि लोग जो वहां के
जो क्लीनर्स हैं उन्होंने क्या किया, उसके बॉल्स बनाई हैं उन धागों की, और वो बॉल्स आपकी हाइट से भी बड़ी बड़ी बॉल्स हैं। किसने देखी हैं वो? दे आर ह्यूज बॉल्स। आपने नॉर्मली वो देखा होगा, और लोग तो वंडर भी होते हैं कि ये पड़ा क्या हुआ है। एंड दिस इज जस्ट द एल्गी, दिस स्पाइरोगायरा। वो ड्राई होती है तो वो धागा बन जाती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एंड इट इज क्रिएटिंग ए न्यूसेंस। तो उसको निकालना पड़ता है, अदरवाइज वो पानी पोल्यूटेड हो जाएगा, पानी में बदबू आएगी, बैठ नहीं पाओगे। इनफैक्ट अभी भी आती है, बदबू आती है, पानी हरा हो जाता है कई जगह से, वो मिट्टी और सॉरी ग्रीन, बहुत ज्यादा डार्क ग्रीन है। जहाँ वॉल्स हैं बिल्कुल साइड में, जहाँ स्टेयर्स में, अगर सपोज स्टेयर्स में बैठे हो, आदित्य स्टेयर्स पे बैठा है तो उसका मन कर रहा है मैंने पत्थर डालने हैं, तो लोग पत्थर भी डालते हैं। पॉपकॉर्न खा रहा था आदित्य, या आइसक्रीम खा रहा था, आइसक्रीम स्टिक फेंक दी। तो दिस इज हाउ इट इज गेटिंग पोल्यूटेड। और वो पानी जो है उसकी दीवार के आसपास ये धागे ही धागे होते हैं, तो दे हैव टू बी रिमूव कॉन्टिन्यूअसली, अदरवाइज वो पानी सारा पी जाएंगे और खत्म हो जाएगी वो लेक। तो ये स्पाइरोगायरा आपको मिलेगी, आगे से याद रखना। तो यू विल फाइंड दिस स्पाइरोगायरा, दिस हेयर इज थिक एंड इज वेरी स्लाइमी। बाल जो है ना ऐसे पिलपिला सा बाल लगेगा, आप उठा के कभी देखना। तो whenever you go there, just remember this, that you will find Spirogyra filamentous. तो एल्गी यूनिसेल्यूलर भी मिलेगी, मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस भी मिलेगी, और एक और नाम आता है कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब, यस, एनी क्वेश्चन? कॉलोनियल का मतलब होता है कॉलोनी। तो उसमें जो ये क्लैमिडोमोनास है ना, ये अपनी एक कॉलोनी बना देते हैं। कॉलोनी में मतलब ज्योमेट्रिकल शेप, इतनी सुंदर ज्योमेट्रिकल शेप है जैसे ये बॉल बना देते हैं आपस में जुड़ के। अंदर से हॉलो है ये, लेकिन इतने सारे इकट्ठे हो गए कि वो कॉलोनी बन गए, ग्रुप ऑफ सेल्स बन गए, कॉलोनी। ठीक है, तो ये कॉलोनियल, इसका एक नाम है वॉलवॉक्स। हर एक कोई नहीं बनाता, सिर्फ जो बना रहा है उसको नाम दे दिया पूरे ऑर्गेनिज्म को वॉलवॉक्स। तो ये 3 तरह के ऑर्गेनिज्म, you'll find them in the NCERT books also, but I've just given you an idea algae देखने में कैसी होती है। It can be unicellular, सिंगल सेल भी हो सकता है, बहुत सारे सेल्स भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर धागे जैसी फिलामेंटस, कॉलोनियल भी हो सकती है। तो ये इनके फॉर्म्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। कैन आई मूव टू नेक्स्ट पेज नाउ? Yes, ma'am. यस। फिर अब हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। जब हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मैंने आपको लिखवाया इट मे बी आइसोगेमस। आइसोगेमस का मतलब है जब दो गेमीट्स, दो लोग जो फ्यूज कर रहे हैं वो देखने में एक जैसे हो। जैसे अभी मैंने बनाया था ना कप शेप, दोनों में कुछ भी फर्क नहीं होगा, ये दोनों मिलेंगे, फ्यूज करेंगे और एक ही बन जाएगा। तो आइसोगेमस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया। एनाइसोगेमस में क्या होगा, मैंने आपको बताया था, दे आर नॉट सिमिलर। मतलब एनाइसोगेमस में एक बड़ा होगा साइज का, एक छोटा सा होगा, then their size is not similar। तो दोनों फिर से फ्यूज करेंगे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो फ्यूजन जरूरी है। दोनों फ्यूज करने के बाद एक ही बना देंगे। तो आइसोगेमी when gametes are similar, fusing gametes are similar। Anisogametes when fusing gametes are dissimilar। इसमें देखने में एक जैसे, और डिसिमिलर में दे आर डिफरेंट टाइप्स। कैन आई मूव टू नेक्स्ट पेज? समझ आ रहा है ना? बस सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया। Yes, Ma'am, ma'am. please just wait for a minute. ओके ओके। Ma'am, done. ओके Ma'am, done. ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है oogamete। Oogamy is one is motile and other is non-motile। ये बात आएगी हमें, ये हम एल्गी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में स्पर्म जो होता है मोटाइल,
एंड एग क्या होता है? नॉन मोटाइल। तो इमेजिन एल्गी जो है वो धीरे धीरे उन्होंने हमारी तरह डेवलपमेंट शुरू कर दी। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ रेवोल्यूशन इन एल्गी जिसमें उन्होंने हमारी तरह ये शो किया है प्रोसेस। वन इज नॉन मोटाइल एंड अदर इज मोटाइल, oogamous। तो इसमें जो एक मोटाइल होगा, मोटाइल मतलब एक मूव करता होगा, व्हेन फ्यूजिंग gametes have one motile and one non-motile gamete। तो ऐसी फ्यूजन को हम क्या देते हैं? oogamous। सिर्फ नाम दिए हैं। आइसोगैमस का मतलब था व्हेन फ्यूजिंग gametes are similar, दोनों एक जैसे हैं। Aniso when fusing gametes are dissimilar in size, and oogamy when one is motile and other is non-motile। Okay? Yes, ma'am. Okay. अब हम बात करेंगे इनके organisms की। Sexual reproduction में लिखो। Ma'am, can you Yes. open the last slide once again? Yes, I'll do that. Oogamous. Thank you, ma'am. In sexual reproduction, sex organs, लिखो। In sexual reproduction, sex organs are unicellular, non-jacketed। इनके ऊपर बाहर कवरिंग नहीं होती तो नॉन जैकेटेड बोलते हैं। ऐसा नहीं कि जैकेट्स पहनते हैं। दे आर नॉन जैकेटेड मींस दे डू नॉट हैव आउटर कवरिंग, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शनली इन कारा, कई लोग इसको चारा भी बोलते हैं। इट इज कारा। दे आर मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड। तो ये किसका क्वेश्चन हो गया? नीट का, क्योंकि बाकी सारे यूनिसेल्यूलर हैं एंड नॉन जैकेटेड है। सिर्फ एक के अंदर जिसको बोला गया कारा, CHARA, उसके अंदर मल्टी सेल्यूलर और जैकेटेड है। अगेन दिस इज नॉट गिवन इन NCERT बट यू हैव टू राइट। इसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स को बोलते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स आर नोन एज ग्लोब्यूल इन केस ऑफ कारा। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज nucleus। मेल सेक्स ऑर्गन्स को बोलते हैं ग्लोब्यूल, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं nucleus। Okay, yes, I'll do that. मेल सेक्स ऑर्गन को बोलेंगे ग्लोब्यूल, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलेंगे न्यूक्यूल। सिर्फ नाम है ये, सिर्फ कारा के अंदर, बाकी किसी में ऐसा कुछ नहीं है। सौम्या, वी आर डूइंग दिस पार्ट एल्गी ओनली। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट्स इफ इट्स पॉसिबल। सौम्या, बेटे सबसे पहले हमने एल्गी के बारे में फीचर्स पढ़ा जो आप लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हो। सौम्या, यू जॉइनिंग लेट बेटे, आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू, प्लीज लिसन टू मी क्विकली। सौम्या, हमने शुरू किया है एल्गी से। एल्गी किसी भी पानी में मिलती है, फ्रेश वाटर, ब्रेकिश वाटर, मरीन वाटर। दे हैव सेल वॉल व्हिच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज के अलावा बहुत कुछ है, पैक्टिन, गैलेक्टोज और मैनोज, ये तीनों शुगर्स हैं। सेल्यूलोज इज आल्सो शुगर। सौम्या, just take screenshots बेटे, just click a picture, sorry। नेक्स्ट इज सेल वॉल के बाहर एक और लेयर है जिसका नाम दे दिया म्यूसिलेजिनस लेयर। इनकी बॉडी कैसी होती है? थैलोइड, थैले जैसी होती है, जिसमें ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ। दे शो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बिकॉज दे हैव क्लोरोप्लास्ट। ओके, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। रिप्रोडक्शन इज बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, तीनों मीन्स से। तो हम सौम्य कर लिया बेटे नोट डाउन ये?
Soumya, done? Just write down the message, yes or no. Okay. नेक्स्ट इज ये तीनों को एक्सप्लेन किया है. वेजिटेटिव क्या होता है? बाय बाइनरी फिशन और फ्रेगमेंटेशन. बाइनरी फिशन जितने भी यूनिसेल्युलर है वो बाइनरी फिशन करेंगे, जितने फिलामेंटस है वो फ्रेगमेंटेशन. एसेक्सुअल स्पोर्स डिफरेंट टाइप्स हैं स्पोर्स के, जूस्पोर और एप्लानोस्पोर्स. एप्लानोस्पोर्स के आगे फर्दर टाइप्स हैं, हिप्नोस्पोर और एकाइनीट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन occurs by isogamy, anisogamy and oogamy. आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी. और सौम्य मैंने इसको एक्सप्लेन किया बेटे अभी इस स्लाइड पे. पहले तो आपको एग्जांपल्स दी थी. ये डायग्राम बनाया है क्लैमिडोमोनास का, यूनिसेल्युलर एल्गी. फिलामेंटस एल्गी की एग्जांपल बताइए स्पाइरोगायरा. अगर आप 42 की लेक में गए हो तो आपको ये बहुत सारा दिखेगा, बाल जैसे होते हैं ये, which are present on the side walls. फिर उसके बाद है वॉलवॉक्स which is colonial. तो यूनिसेल्युलर, फिलामेंटस और कॉलोनियल, ये तीन एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पे बने हुए हैं. फिर जब हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में तीन तरह के हैं रिप्रोडक्शन. आइसोगैमस व्हेन गेमीट्स आर सिमिलर. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब दोनों एक जैसे होंगे देखने में, फ्यूज में देखो आसपास सामने आमने सामने आए, फ्यूज किया और बना दिया एक ऑर्गेनिज्म. एनाइसोगैमस एक बड़ा एक छोटा है, फ्यूज किया बना दिया एनाइसोगैमस. ऊगैमस में एक मोटाइल है एक नॉन मोटाइल है. जैसे हम में होता है स्पर्म्स मोटाइल होते हैं, एग नॉन मोटाइल, तो ऐसी स्पेशल चीज को हम क्या बोलते हैं? ऊगैमस. Okay, next is Ma'am, can you yes. please once show the previous slide on which all the diagrams were drawn? Okay, diagrams. Okay, this one. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली दी सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेल्युलर. जनरली दे आर यूनिसेल्युलर एंड नॉन जैकेटेड. मतलब यूनिसेल्युलर पाए जाते हैं सेक्स ऑर्गन्स, बट एक्सेप्शन इज कारा. कारा में दे आर मल्टीसेल्युलर एंड जैकेटेड. तो कारा के अंदर ही मेल पार्ट को हमने नाम दे दिया ग्लोब्यूल, फीमेल पार्ट को नाम दे दिया नुक्यूल. ओके, क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. ये सिर्फ आपने लिखा है. और एल्गी के बारे में जब आप इसकी इंपॉर्टेंस सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे, इतनी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है. फिर नेक्स्ट आप लिखोगे फीचर में ही. अभी हम फीचर्स लिख रहे हैं. प्लीज राइट डाउन. प्लांट बॉडी इज हेप्लॉइड. अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज हेप्लॉइड. अभी आई विल टेल यू व्हाट इज मैम हेप्लॉइड. एक बार मैम आप डेफिनेशन रिपीट कर दोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिस वन. अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में Yes, बच्चे ma'am. सिर्फ, हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि सेक्स ऑर्गन्स इन दिस केस दे आर यूनिसेल्युलर एंड नॉन जैकेटेड, but there is an exception, cara, where they are multicellular and jacketed. और उसके अंदर मेल को बोलते हैं ग्लोब्यूल, फीमेल को बोलते हैं नुक्यूल. ये सिर्फ कारा के केस में है. Okay, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज प्लांट बॉडी इज हेप्लॉइड. लिखो. अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज हेप्लॉइड. आपको अभी आई विल एक्सप्लेन, जस्ट राइट डाउन, फिर आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. Sexual reproduction takes place through zygotic meiosis,
Sexual reproduction takes place through zygotic meiosis. Sexual reproduction occurs through zygotic meiosis. Next point, life cycle is हैप्लॉन्टिक. सिर्फ लिख लो, ये किसी को कुछ नहीं क्लियर होगा. व्हाट इज हैप्लॉन्टिक, व्हाट इज हैप्लॉइड, व्हाट इज zygotic meiosis. अभी एक डायग्राम आएगा जिसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाए. Life cycle is haplontic, but exceptionally brown algae is diploid. Exceptionally brown algae, which is diploid. Next, diploid, and it shows gametic meiosis. बाकी सारे zygotic meiosis show करते हैं. And what you But- have written after shows? Shows gametic, GAMETIC, gametic meiosis. And life cycle is diplohaplontic. And life cycle is diplohaplontic. Done, everyone? Yes, ma'am. हाँ, अब मैंने जो Yes, ma'am. स्क्रीन पे लिखा है ना, वो क्या है? स्क्रीन पे है कि प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड.
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू जाइगोटिक मेयोसिस। तो हेप्लॉइड बॉडी और जाइगोटिक मेयोसिस करते हैं, इसीलिए हेप्लॉइड है, तो इसीलिए इसे हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। बट ब्राउन एल्गी ऐसी एल्गी है जिसमें हेप्लॉइड की जगह डिप्लॉइड है, जाइगोटिक की जगह गेमेटिक मेयोसिस है, हेप्लॉन्टिक की जगह डिप्लोहेप्लॉन्टिक है। ओके, सो ये बिल्कुल एक्सेप्शन है ब्राउन एल्गी। नाउ यस, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया सभी ने? आर यू डन विद दिस पॉइंट? यस एवरीवन? Yes, ma'am. हाँ, इसी के अंडर फिर आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट, आइसोगेमस की एग्जांपल्स। इट इज अगेन नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी। हमने बनाया था आइसोगेमस। आइसोगेमस के बारे में लिखो। फ्यूजिंग गेमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। फ्यूजिंग गेमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। और जो एग्जाम्पल बनाया था मैंने, देखो स्क्रीन पे डायग्राम बना हुआ है। क्या है ये? कप शेप किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट। Chlamydomonas. यस, स्क्रीन पे देखो बना हुआ है, शेप ऐसी बनी है और इसको कप शेप, ये कप शेप बोलते हैं इसको ऐसे। दिस इज कॉल्ड एज कप शेप क्लोरोप्लास्ट, क्लेमेटोमोनस। तो इसी में फ्यूजिंग गेमीट्स, देखो ये दो बनाए कप शेप क्लोरोप्लास्ट। तो आइसोगेमस में मैंने क्या बनाया था? क्लेमाइडोमोनस। तो लिखो, पूछा हुआ है आइसोगेमस व्हेन दे आर मॉर्फोलॉजिकली, व्हेन फ्यूजिंग गेमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, इट इज कॉल्ड एज आइसोगेमेट्स क्लेमाइडोमोनस। और भी एग्जाम्पल है इसके अंदर, लिख लो। यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, आई विल मेक द डायग्राम तब आपको क्लियर होगा। यूलोथ्रिक्स, ULO, यूलोथ्रिक्स अंडरलाइन करना बिकॉज दीज आर ऑल साइंटिफिक नेम्स। एक्टोकार्पस, एंड स्पाइरोगायरा। आइसोगैमस, फिर उसके बाद आता है एनाइसोगैमस व्हेन फ्यूजिंग गेमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर। एक में साइज बड़ा, एक का साइज छोटा, याद है ना? अभी बनाया था हमने। Yes, when ma'am. yes, when fusing gametes are dissimilar, look on your screen सौम्या, एक बड़ा है एक छोटा है। when fusing gametes are dissimilar, it is known as anisogamous। और इसमें एग्जाम्पल लिखो। क्या बनाया था मैंने? फिर से कप शेप क्लोरोप्लास्ट वाला, क्लैमिडोमोनस। अब मैं सिर्फ C डॉट लिख रही हूँ, ORAUNI, ऑर्युनाई, ORAUNI, ऑर्युनाई। Ma'am, this is the complete name. Yes, this is complete name, Chlamydomonas oruni. Ma'am, is spelling is ORAUNI. ORAUNI, yes.
बच्चे डन? Yes, Yes. ma'am. Okay. So, Yes, ma'am. and yes, anisogamous, write down next point, oogamous. Oogamous में लिखो fusion of motile male gamete and लिखो fusion of motile small male gamete Ma'am, can you repeat? बच्चे fusion of motile मतलब जो चल सकता है, fusion of motile small male gamete, motile small male gamete and large non-motile female gamete. और फिर से इसमें एग्जांपल्स लिख लो oogamous में वॉलवॉक्स, डायग्राम बना चुके हो आप वॉलवॉक्स का, फ्यूकस, sargassum, sargassum. These are the examples of oogamous. If you all are done, can I move to the next page? Yes, ma'am. अब इसके बारे में आप लोगों को क्लियर है रिप्रोडक्शन के बारे में, इट कैन शो एसेक्सुअल, वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट. तो टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट. मैंने आप लोगों को अभी ये बताया था कि कहीं पे भी मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी, मरीन वाटर में भी, गर्म उबलते पानी में भी मिलेंगे. दे आर फाउंड एवरीवेयर on the basis of habitat. Habitat होती है the place of living. तो it can be aquatic, पानी के अंदर हो सकते हैं. It can be on soil, terrestrial हो सकते हैं. तो aquatic में it can be fresh water, marine water. अभी पढ़ा था हमने, और बताओ. Brackish water. Yes, Brackish water. yes. Even we can call it as estuary. अभी बताया था ना एस्चुरी क्यों बोलते हैं. सिल्ट फॉर्मेशन होती है, कहते हैं जहां पे मेरीन और फ्रेश वाटर मीट करते हैं वहां मिट्टी रेत बनती है, एस्चुरी. दैट इज वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, फर्टाइल, बहुत फर्टाइल सॉइल होती है जिसको ब्लैक सॉइल भी बोला जाता है. तो वहां पे भी आपको एल्गी मिल रही है. टेरेस्ट्रियल में बहुत सारी टाइप्स हैं. तो टेरेस्ट्रियल में हम टाइप्स पढ़ेंगे. सबसे पहले दे आर फाउंड एल्गी फाउंड इन मड, कीचड़ में मिलेंगे, इट इज कारा. Algae found in mud. Ma'am, these are types of types Terrestrial. in terrestrial. Yes, yes. Banks of ponds. अभी मैंने बताया था आदित्य लेक पे गया 42 की, और वहां पे उसने पॉपकॉर्न खाया, फेंका, उसने पेबल फेंक दिया, पत्थर उठा के फेंक दिया, आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम स्टिक फेंक दी.
तो उसके आसपास पॉन्ड्स के आसपास क्या मिलेगा उसको? Thread-like structures, क्या? spirochete. यस यस, तो बैंक्स ऑफ पॉन्ड्स में कौन सी होगी? यस, समझ आ गया सभी को, वेरी गुड, स्पाइरोगायरा। तो मैंने आपको बोला आपको कुछ लर्न नहीं करना, सिर्फ क्लास में अटेंटिव होना, दैट्स इट। दिमाग लगाओगे अपने आप समझ आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज बैंक्स ऑफ पॉन्ड, लिख लिया सभी ने? कुछ एल्गी ऐसी होती है विच आर फाउंड इन थर्मोफिटिक वाटर, मतलब उबलते पानी में। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, मणिकरण साहब जाओ तो वहां पानी इतना गर्म होता है कि वहां चावल उबल जाते हैं, काले चने उबल जाते हैं, इतना उबलता हुआ पानी है। लोग कपड़े में पानी में डालते हैं पानी में बोरी में डाल के, तो वो उबल के निकलते हैं। तो वहां पे भी आपको ये एल्गी मिलेगी। तो ऐसी एल्गी, थर्मा मीन्स हॉट, फिटिक मीन्स प्लांट, थर्मोफिटिक एल्गी। और अगर उबलता हुआ पानी है तो ऑब्वियसली इट इज मोर देन 80 डिग्री और 80 डिग्रीज। तो इसमें एग्जाम्पल वहां पे आई हैव सीन दिस, आई हैव कलेक्टेड दिस एल्गी। तो लिख लो पहले, सॉरी, thermophytic algae which is more than 80 degrees temperature, which survive in this temperature. Can I move to next page? Yes, Thermophytic, ma'am. okay, thermophytic algae, thermophytic algae में है एग्जाम्पल लिख लो, ऑसिलेटोरिया, OSCILLATORIA, ऑसिलेटोरिया ब्रूइस। नेक्स्ट टाइप लिखो। अब इतने उबलते पानी में भी है तो एक ठंडे बर्फ में भी मिलते हैं, क्रिप्टोफिटिक। क्रिप्टोफिटिक कह दो, कई बार लिखा होता है क्रायोफिटिक, एक ही बात है, क्रायोफिटिक। क्रायोफिटिक एल्गी वेरी 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 लो टेम्परेचर, और इसकी वजह से बर्फ भी लाल हो जाती है, ऐसे लगता है खून गिरा हुआ है, किसी जानवर का खून है, बट इट इज एल्गी। इट इज कॉल्ड एज रेड स्नो। रेड स्नो इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लेमाइडोमोनस। स्पीशीज का नाम है नेविस, NAVIS। कई बार ऐसे होता है स्नो लगती है ग्रीन, ग्रीन स्नो, स्नो के बीच में हरा हरा सा होता है, अगेन इट इज बिकॉज ऑफ क्लेमाइडोमोनस स्टोनेसिस। ये स्पीशीज हैं अलग अलग। कई बार लगता है कि उसमें ब्लैक पैचेस हैं, अंदर से काली हो गई स्नो, इट इज बिकॉज ऑफ स्कॉटिएला। अब इन नाम को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस अलग अलग दी होंगी। अगर मैंने आपको बोला रेड स्नो तो आपको नहीं याद है क्या है, लेकिन आपको इतना तो पता है क्लैमिडोमोनस है, तो उन चारों में से जहां पे भी क्लैमिडोमोनस होगी उसको आप टिक कर दोगे। जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तभी आप कर पाओगे। Ma'am, can you repeat Ma'am, this? what is the third one? ब्लैक स्नो स्कॉटिएला, SCOTIELLA, स्कॉटिएला। और कई बार ये एल्गी पौधों पे मिलती है, एपीफिटिक। एपी मीन्स ऑन, फाइटा मीन्स प्लांट, किसी और प्लांट के ऊपर। तो ये एग्जाम्पल है बल्बोकीट ऑन क्लैडोफोरा। नीट के इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए एक्चुअली आई एम मेकिंग यू राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि जब आप एमसीक्यूज करोगे और नोट्स आपके सामने होंगे तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने इजी होंगे, और एक बार आपके दिमाग से निकल गया, आपको दिख गया ना क्वेश्चन, तो याद रहेगा। प्लांट्स के ऊपर भी रहते हैं, कई जानवरों के ऊपर भी पाई जाती है एल्गी, एपिजोइक एल्गी। और जानवरों में प्रोटोडर्मा है which is on tortoise back.
उसकी पीठ पे काई जम जाती है, एपिजोइक। एपिफिटिक ऑन प्लांट्स, क्रिप्टोफिटिक जो स्नो में मिलेगी। अब ये तो मैंने बताया किसी जानवर के ऊपर, एपिजोइक जानवर के अंदर भी मिलेगी। यस, And what are the spellings of epiphytic algae? Epiphytic एपिफिटिक algae example. बल्बोकीट, BULBOCHAETE, बल्बोकीट, बल्बोकीट ऑन क्लैडोफोरा। Okay, ma'am. Okay. If you are done, can I move to next page? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. इसके बाद नेक्स्ट है, अभी तो मैंने बताया कि प्लांट्स एनिमल्स के ऊपर एपिजोइक। अब इसमें आप सुनोगे एपिजोइक के अलावा एंडोजोइक, एनिमल के अंदर। एंडोजोइक बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, स्टार लगा लेना। जू क्लोरेला इन हाइड्रा, इतने छोटे से जानवर के अंदर, हाइड्रा माइक्रोस्कोपिक है, उसके अंदर भी आपको एक एल्गी मिलेगी, जू क्लोरेला। पैरासिटिक एल्गी, पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी और जानवर पे रहते हैं और उसका ब्लड सक करते हैं, लेकिन इनके केस में ब्लड नहीं, न्यूट्रिएंट सक करेंगे। इसमें एग्जांपल है किसी और एल्गी पे रहने वाला हार्वियला ऑन अदर एल्गीज। मरीन एल्गी जो सिर्फ नमकीन पानी में मिलेगी, उसमें है फ्यूकस, sargassum. I'll show you pictures also. I'll share pictures marine algae की। और कल को अगर आप कल को गोवा या केरला घूमने जाओगे तो आप वहां से आप भी कलेक्ट करके लाना फ्यूकस और sargassum। नमक वाली सॉइल में हेलोफिटिक एल्गी, फिर से बीचेस पे मिलेंगी, बीच की जो सॉइल है वहां पे आपको ये एल्गी पाई जाएगी, आप देखोगे उसमें। दिस इज अगेन क्लैमाइडोमोनस क्रेनबर्जाई, क्लैमिडोमोनस, इसको मैंने सी डॉट लिख दिया है, क्रेनबर्जाई। सिम्बायोटिक एल्गी, चॉकलेट क्वेश्चन, हु विल टेल मी दिस आंसर? अगर हम ऑफलाइन Like. क्लास में, यस शाबाश, हु इज दिस? Ma'am Tanveer. वेरी गुड तनवीर, शाबाश। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है प्यारे बच्चों, लाइकन्स में आपने सबने पढ़ा है, एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। सिम्बायोटिक एल्गी ऐसी जगह जहां पे एल्गी किसी के साथ रह रही है, लाइकन्स में होता है एल्गी और फंजाई। ध्यान से सुनना गुरलीन एंड करणबीर। अच्छा, ये लाइकन्स वो होते हैं जिसमें एल्गी और फंजाई दोनों मिलके रहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और एक टेरेस्ट्रियल एल्गी की एग्जांपल लिख लो। वैसे तो ये सारी टेरेस्ट्रियल है, लेकिन सॉइल पे मिलती है ये टेरेस्ट्रियल एल्गी। बॉटराइडियम, BOTYRIDIUM, बॉटराइडियम। इसकी क्लासिफिकेशन और वो बाकी डिटेल्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आप सिर्फ इसके बारे में सुनो। लाइक जो हम एल्गी की कहते हैं, क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, क्या फायदा है हमें? Ma'am, तो once please may you show previous slide? ओके, डन। Yes, ma'am. Thank you. ओके, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कहते हैं एल्गी का फायदा क्या है? प्यारे बच्चों, अगर मैंने आपको बताया एल्गी इज ग्रीन इन कलर,
It is showing photosynthesis. Photosynthesis में कौन सी गैस लेते हैं? CO2. कार्बन डाइऑक्साइड, And कौन सी Carbon गैस dioxide. रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। Oxygen. So they produce oxygen. They are major, they act as major contributors of oxygen. नीट का क्वेश्चन आया था एक बार, लास्ट ईयर है ये. You can check it from the previous question papers. I will also share. उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था, which of the following organisms they are the chief producers of earth. And my dear friends, ये पहली लाइन एल्गी के अंदर आपकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में दी हुई है एनसीईआरटी में. एल्गी में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एनसीईआरटी में पहली लाइन आपकी यही दी हुई है, एल्गी आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ अर्थ. तो ये नीट का सिंपल सा क्वेश्चन था, उसमें प्लांट भी दिया गया था, एल्गी भी दिया गया था, फंजाई भी. बच्चों ने सिंपल प्लांट बिना देखे प्लांट्स कर दिया. बट विच आर चीफ प्रोड्यूसर्स? एल्गी. एल्गी में कुछ ऐसी एल्गी है जो प्रोड्यूस करती है एल्जिन. हम पढ़ेंगे अभी. एल्जिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम ब्राउन एल्गी. आप सुन लो क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे. ब्राउन एल्गी जो सिर्फ बीचेस पे पाई जाती है, क्योंकि ब्राउन है तो ये फोटोसिंथेटिक नहीं है, तो ऐसी एल्गी, ब्राउन एल्गी प्रोड्यूस करती है एल्जिन. एंड एल्जिन वही चीज है जो आप टूथपेस्ट में यूज करते हो, कॉस्मेटिक्स में, क्रीम्स में यूज करते हो, आइसक्रीम में डलता है. आपने कभी देखा होगा घर की जो आइसक्रीम बनाते हो वो उसमें बर्फ जमती है. बाहर की आइसक्रीम लोगे, स्कूप डालोगे तो वो क्रीमी होता है, कंसिस्टेंसी सेम. टूथपेस्ट है, गर्मियों में पिघलती नहीं, सर्दियों में जमती नहीं, कंसिस्टेंसी सेम, बिकॉज दे हैव दिस प्रोडक्ट एल्जिन. क्लियर? एल्जिन पता चल गया. नेक्स्ट आता है एगर. एगर इज यूज्ड इन मेकिंग जेलीज. जेली खाते हो ना बच्चे? जेलीज बहुत खाते हैं. जेली वाला केक आता है आजकल. तो हार्ड जेलीज या सॉरी जो सॉफ्ट जेली इज मेड फ्रॉम एगर. And this agar is very important. This jelly-like substance, agar, it is used for growing microorganism. कल को अगर आप चाहते हो कि बैक्टीरिया को मैंने उसमें ग्रो करना है लैब में, तो you will use this agar. There are few algae like chlorella which are used as food by space travelers in spaceship. अब स्पेसशिप पे जा रहे हो, उसमें तो इतना भी सामान नहीं. अब ये नहीं अब 1 महीने के लिए या पता नहीं अब 2 महीने वहां स्टकअप हो गए, अब वहां राशन नहीं लेके जाओगे आप. वहां इतनी सी जगह होती है स्पेसशिप के अंदर कि आप हाथ भी नहीं खोल सकते सीधा, तो खाने की तो बहुत दूर की बात है. तो दे टेक दिस क्लोरेला. क्लोरेला के फायदे सुनना. आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन दे रहा है स्पेस के अंदर, क्योंकि फोटोसिंथेटिक है, ऑक्सीजन दे रहा है. टॉप पे फर्स्ट लाइन दी है. आपकी गंदी गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्यूरिफाई कर रहा है. यूरिन जो अगर आपने या शिट पास किया उसको, उसके लिए खाना है, फूड है, मेन्योर है, और आप भी खाना खा रहे हो. तो इट इज यूजफुल एंड यू कैन सर्वाइव विद दिस फॉर मेनी डेज विदाउट फूड. एंड इट इज रिच इन प्रोटीन. विल डिस्कस एवरीथिंग इन नेक्स्ट क्लास. सो आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर है. यस Yes, ma'am.